رمضان پورا جانے کو رمضان کو پوچھتے ان سے پتہ کیا کرنا پیچھے لائن بنا دو سسٹم نال کھڑے ہو جاؤ تھوڑا سوشل ڈسٹینس رکھو تھوڑا تھوڑا جا کھلے کھلے ہو جاؤ کھلے کھلے ہو جاؤ نعرہ تکبیر گستاخ رسول کا ایک ہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گستاخ رسول کو 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 جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے تقریباً 3 روز قبل سے یہ خبر جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے کہ ایک ستپال شرما کے نام سے، جس نے ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو ہمارا تو یہ ماننا ہے، سب سے پہلے جو میں نے آیت آپ کے یہ 7واں پارہ ہے، اور 7ویں پارے کے آخری پیج سے میں یہ آیت پیش کر رہا ہوں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ آپ اس شخص کو، اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ آپ اس شخص کو برا بلا یعنی کہ گالی مت دو۔ سبا یا سبو میں نے گالی دینا، اس شخص کو گالی مت دو، برا بلا مت کہو۔ ولا یسب الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کی رسی کو چھوڑ بیٹھا ہے، اللہ کے رسول کو چھوڑ بیٹھا ہے، ان کے دامن کو چھوڑ بیٹھا ہے،
اس کو آپ برا بلا بھی مت کہو. ہمارا تو قرآن ہمیں یہ علم دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے. فیسب اللہ عدوم بغیر علم، کیونکہ اگر ہم کسی غیر اسلام کو، کسی غیر قرآن و حدیث کو ہم برا بلا کہیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے حقیقی خدا کو برا نہ کہہ بیٹھے، اور اس کا گناہ جو ہے وہ اس ناعلم پر، اس کی ناعلمی کی وجہ سے، اس کی گستاخی کی وجہ سے تم پر. اس لیے ہم اپنے جو بھی بات کرتے ہیں ہم قرآن کے فیصلے کے مطابق، آیت کے مطابق، قرآن کے درس کے مطابق ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی غیر اسلام کو گالی تو گالی ہے کہ ہم برا بلا بھی نہ کہیں، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے. مخالفین جو بھی الزام درازی کریں وہ کریں، ہمیں ان کا زبان کرنی ہے، وہ کرتے رہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم ان کو گالی نہ دیں، ہم ان کو برا بلا نہ کہیں. اور گستاخ رسول جو ہے، اور ہمارا قرآن یہ کہتا ہے تو کہیں وہ ہمارے خدا کو گالی نہ دے بیٹھے، ہمارے رسول کو کہیں گالی نہ دے بیٹھے، ان کی شان کے میں گستاخی نہ کر دے. تو اس کی وجہ سے ہم کسی غیر اسلام کو نہ چھیڑتے ہیں اور نہ چھیڑنے کا حکم کہتے ہیں، یہ ہمارا قرآن کا فیصلہ ہے. اس لیے ہماری ایڈمنسٹریشن نے جو فیصلہ کیا ہے، جو اس ستپال شرما نام کے شخص نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، ہم یہاں کہ پوری کائنات کا مسلمان اس گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا. یہ پیغام کربلا سے لے کر کے آج تک نہیں بلکہ صبح قیامت تک یہی چلتا رہے گا کہ جس طریقے سے گستاخی رسول کرنے والے کو کربلا کی زمین پر امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور اپنے دین و اسلام کے پرچم کو بلند کیا. اس لیے ہم کسی بھی گستاخ رسول کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہماری جان چلی جائے، ہمارا سر جو ہے تن سے کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن ہم ہرگز جو ہے یہ چیز برداشت نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. ایڈمنسٹریشن نے ہمارا ساتھ دیا، ان کے خلاف FIR درج کی ہے، اور ان کے خلاف ہمارا یہی ہے کہ ہم اس کی کڑی سے کڑی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنی ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں. SHO صاحب ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور ہم IGP جموں سے بلکہ DGP جموں کشمیر سے ہم ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ سخت سے سخت اس کو سزا دے کر کے، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ سر تن سے جدا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور واجب ہو جاتا ہے. یہ ہمارا ہندوستان ہے، ہم ہندوستان کے قانون کے محافظ ہیں، ہم ہندوستان کے قانون کے مطابق ہم چلتے ہیں. ہندوستان کا قانون یہ ہمیں نہیں سکھاتا ہے کہ ہم اس وقت جو ہے اس کے خلاف جا کر کے کچھ اور کام کر بیٹھے، اور کل خدا نہ خواستہ کوئی نوجوان جا کر کے اس کے خلاف کوئی باہر کچھ نہ کچھ اس کے خلاف کر ڈالے تو یہ ایڈمیشن پہ کل ہمارے پر یہ مدعا جو ہے ہمارے خلاف FIR لگا کر کے تو ہمارے خلاف جو ہے کارروائی کرنا شروع نہ کر دے. اس لیے ہمارا معتبانہ التماس ہے، ہماری گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ نے ٹھیک ہے FIR ان کے خلاف لگایا ہے، آپ جو ہے PSA لگا کر کے اور اس کے خلاف کڑی سے کڑی جو ہے کارروائی کریں. ہمارا بس اتنا مطالبہ ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ FIR لگائی یا نارمل طریقے سے آپ نے لگا کر کے جو ہے اس کو تھانے کے اندر بند کر دیا، نہیں، بلکہ اس کو PSA لگا کر کے اس کے خلاف کڑی سے کڑی جو ہے کارروائی کی جائے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو بھائیوں، بڑے دکھ سے پڑتا ہے، کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کا نام کتا ستپال سنا گیا ہے. ہم اس کو کتا کہیں گے، کتے سے بھی برا ہے. جو ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے ہم اس کو گالی دے سکتے ہیں، جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اس کو مار بھی سکتے ہیں. وہ کتا ہے ستپال شرما، جو کہتے ہیں کہ ریاسی کا رہنے والا ہے.
एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अरेस्ट कर लिया है, FIR लगाई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हम उससे क्यों से ऐसे लोगों को खुला क्यों छोड़ रखा है? उस नबी को गाली देनी, जो नबी खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, उस नबी ने रहमतुल आलमीन साली पूरे इंसानों के लिए दुआ की, तो उस नबी के बारे में बुरा भला कहते हैं। ऐसे इंसान को मैं कहता हूँ उसकी सज़ा जितनी भी दी जाए वो कम है। उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। मैं डीसी जम्मू से गुजारिश करता हूँ कि आप छोटे छोटे मसलों पे, JNK में छोटे छोटे मसलों में PSA लगाया जाता है, क्यों नहीं उस इंसान को अभी तक PSA लगा? उसको PSA में बंद करना चाहिए। जो हरामी 2 फिरकों में पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे आलम दुनिया में लड़ाई लगा दी उसने, पूरे 1 अरब 30 करोड़ लोगों के दिल मुजरू किए उन्होंने। हमारी आस्था पे, हमारे मजहब पे, हमारे ईमान पे हमला किया उसने, तो उसको अभी तक पक्का ढंगा थाना में बड़े ऐसे रखा हुआ है। उसको PSA लगाना चाहिए था। ऐसे छोटे छोटे कोई पकड़ते हैं बच्चों को तो उनको भी PSA लग जाता है, उनको PSA क्यों नहीं? हमारी पुरजोश गुजारिश है कि उसको फौरन PSA लगाया जाए और उसको सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम ये कहते हैं, पिछले दिनों बंगलोर में ऐसा ही कोई कुत्ता और था, उसने भी गुस्ताखे रसूल किया था, पूरा बंगलोर जल गया। हम जम्मू के मुसलमानों से अपील करते हैं कि आपने जैसे बड़े सब्र का मुजाहरा किया, ऐसे ही सब्र का मुजाहरा करते हुए हमें अपना भाईचारा बना के रखना है। जैसे सदियों से जो हिंदू हमारे भाई हमारे साथ रहते हैं, मैं उन हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, उनको भी सामने आके कंडेम करना चाहिए ऐसे इंसान के लिए, बेशक ताकि हमारे सदियों करते हैं, इस जुमले की तायद करते ताकि सदियों के भाईचारे को जो खराब कर रहा है, ऐसे इंसान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बाकी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर, हम मुतमिन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से खाली पकड़ने से, अरेस्ट करने से। जे मैं सब कहता हूँ, आप सभी सही कहते हैं, हम मुतमिन नहीं है। उसको PSA लगाना चाहिए कम से कम 4-5 साल के लिए। वो इंसान जम्मू की गलियों में बाहर नजर नहीं है, पकड़ते हैं, आई वाश करते हैं, 10 दिन के 15 दिन के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसकी कोर्ट से जमानत हो गई, ऐसा मेरे भाइयों नहीं होना चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन को फिर बार बार कहते हैं कि उस नबी की गुस्ताखी, जिस नबी गैरों के लिए भी दुआ की, मुसलमानों की तो बात ही नहीं कोई। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से फिर गुजारिश है कि उसको PSA लगाया जाए, और आज 1-2 दिन में PSA लगाया जाए, वरना हम लोग PSA के लिए रोड पे आएंगे। हम इतने ही चुप बैठने वाले नहीं हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा ये है कि PSA का उस पर दफ़ा लगा करके वो कापी हमारे वकला हजरात जितने भी हैं वो हमारे साथ हैं, को देखेंगे, हम मुतमईन तभी होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कल हमें इसकी जिम्मेदार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी कि हम वो FIR और PSA की कापी अगर हमें ना दिखाई गई और इस पर कोई जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई ना की गई, तो कल जो है हम सब निकल करके, हिंदू मुस्लिम सिख सब हम निकल करके जब रोडों पर आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू के हालात ख़राब हो जाएं। इसलिए ज़रूरी ये है कि एडमिशन इसके ऊपर जो है PSA लगा के और हमारे वकला हजरात के सामने जो है ये पेश नहीं, हमारी डिमांड है DC से, हम छोटे छोटे लड़के पकड़ के PSA लगा लेते हैं, उनको भी लगाओ PSA, बगैर PSA लगाना चाहिए। अच्छा, ये सारे आप इकट्ठे हो सारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए, ऐसे डिस्टेंस ताकि आज यहाँ हाफिज साहब ने, रजाक साहब ने और दूसरे साथियों ने यहाँ कहा है, हमें थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा दूर दूर खड़े रहें, ताकि कोई जमगठा करके, जो इस वक्त हम बीमारी में लगे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो बात इतनी छोटी सी नहीं। जैसा कि हाफिज साहब ने कहा और रजाक साहब ने भी कहा, मैंने रियासत के तूल व अर्ज़ व बल्द में
इस वक्त रजौरी, पूंछ, कश्मीर, जहाँ भी किश्तवाड़, आगे पीछे जहाँ भी देखें इस पूरे हिंदुस्तान में, तो पूरी कंट्री में, और जिस तरीके से उसने ये लफ्ज़ यूज़ किया वो काबिल मजम्मत नहीं बल्कि कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए उसको सज़ा होनी चाहिए। सज़ा के तौर पर हम ये नहीं कहना चाहते कि भाई हमारी कोई प्रेशर करके हम कहें कि उसको सज़ा दें, बल्कि हमारा ये कहना है कि आए दिन इस तरह के हालात पैदा करने के लिए क्यों जम्मू एंड कश्मीर को ही चुना जाता है। ऐसी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अगर कोई नत्थू गहरा आयरा गहरा उठ के शान रसूल के लिए कह दे, वो पीडीपी के खिलाफ बोले, वो कांग्रेस के खिलाफ बोले, वो बीजेपी के खिलाफ बोले, वो किसी और जमात के खिलाफ बोले, वो मेरे खिलाफ बोले, किसी दूसरे साहब के बोले, अगर उसको कोई ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन उसकी ये जुर्रत, और वो फिर बाबांगे धोल वीडियो इंटरव्यू भी दे, और इंटरव्यू देकर वो फिर उसको वायरल भी करे, और फिर कहे कि पूरी मिल्लत और इस्लामिया उम्मत इस्लामिया जो खामोश बैठी रहेगी। कानून के अंदर ये जुर्म खालिस्तन छोटा मोटा जुर्म नहीं। अगर पीएसए के लिए आप कहते हो ना, अगर ये कहा जाए कि अगर ये जुर्म जो माना जाए तो पूरी उम्मत के लिए जुर्म जो है ये इसका सर कलम करने से कम नहीं है। नहीं, पर हम यहाँ एक कानूनी दायरे के अंदर रहते हैं। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क के अंदर हुए सेक्शन 295A(3)(a) जो इंडियन पेनल कोड है उसके तहत सजा मुकर्रर है, लेकिन उस सजा के लिए वो छोटी सजा है। उस सजा को हम देखकर हम सेटिस्फाई नहीं है, जिस तरह इन्होंने कहा है कि अगर आप कह भी दें उसके लिए कि हमने उसके लिए जो आईजीपी साहब ने, आईजीपी साहब को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा ऑफिसर है, ये हमारे इलाके में रह के आए। यहाँ जो डीजीपी से वो भी अच्छा काम करें। इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नए आए हैं। अगर हालात यहाँ इस तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है तो हमारे लिए ये जीने मरने की बात आ जाती है। इसलिए नहीं जीने मरने की कि बूढ़ी के मरने की बात नहीं, मौत का उसको रास्ता मिलता है। आए दिन अगर हम इसको खामोश रहेंगे, ये कल कोई और बकवास करता फिरेगा इस तरह से। और फिर हम इस तरह से कहेंगे हम 4 नहरें मार के अपनी जगहों पे कह के हम की मस्जिद में आके नहरें मार के मस्जिद के बीच में बैठ के एसएचओ साहब ने हमें कोऑपरेट किया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन ऐसे शख्स को माफ कर देना, ये मैं तो कहूंगा, मैं तो कानून का आदमी हूं, मैं चाहूंगा कानून के दायरे में उसको रखना चाहिए। लेकिन पक्का दंगा पुलिस स्टेशन में क्यों एफआईआर? ये एफआईआर क्यों नहीं रजौरी पुंछ में? ये एफआईआर क्यों नहीं किश्तवाड़ में, जहां के लोगों के मजरू हुए हैं, जिसको कहते हैं कि जो हमारे मजहबी अकायद जो मजरू हुए हैं, जहां मेजॉरिटी में लोगों के मजरू है, वहां भी एफआईआर होनी चाहिए। रजौरी में होनी चाहिए, पुंछ में भी होनी चाहिए, जगह जगह होनी चाहिए जहां जहां उसने ये इसके जो हमारे मजरू किए वीडियो गई है। लिहाजा ये मामला थमने वाला नहीं, पर हमें चाहिए काम लेना है। हौसला तभी होगा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, उन्होंने एफआईआर लगाई है, और फिर साथ साथ में उन्होंने एफआईआर उन लोगों पर भी लगाई है, कुछ लोगों पर कि जिन्होंने इनके खिलाफ बोला है। तो हम नहीं चाहते, कहते कि भाई अगर बोलने पर एफआईआर लगाना चाहते हो तो 100, 200, 400, 500, 1000 भी लगाओ, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। लेकिन ये बात फिर थमेगी नहीं, फिर थमने वाली नहीं होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप ऐसा करें, उसको पीएसए लगाएं, पीएसए के तहत उसे बंद रखें, ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर की बात भी बनाई, अनरेस्ट पैदा की और लोगों के दिलों को ठेस पहुंची। ये हालत उस मुश्किल दौर में जब कश्मीर से एक्सोडस होके हमारे लोग वहां से आए, तो यहाँ जम्मू के लोगों ने बड़ा सब्र और तहम्मुल से काम किया हुआ है। यहाँ एक ऐसी धरती है जहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर हम बैठ के चलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ शरारती इंसान तो सस्ती शोहरत के लिए वो अंकुर शर्मा, वो उसके बीच में खड़ा है। अंकुर शर्मा जो आज दिन यहाँ कहता है एडमिनिस्ट्रेशन बोली नहीं उसके लिए। हमें भी मुंह है, जबान है, मैं भी वकील हूं, हम जानते हैं अंकुर शर्मा को भी, लेकिन अंकुर शर्मा यहाँ बाबांगे दौड़ बोलता रहा, मुसलमानों के खिलाफ, गुजरों के खिलाफ, दूध नहीं लो, ये चीजें लो। और उस अंकुर शर्मा का फोटो उस बेवकूफ इंसान के साथ है। उसमें शर्मा सुनो, अगर आप ये कहेंगे
क्या ज्यादा वो हो जा रहे हैं, एक जो इशू है इसी पे रखिए। नहीं हमें तो वो अपने उसका हिसाब से साथ है। सचिव साहब आपके हिसाब से थोड़ा आप थोड़ा बताओगे एक मिनट अब तो ठीक है बताओगे ना। ठीक है